Hello students, now from NCERT book exercise 3.3, just in this video I am starting, and practical use of the substitution method is here. Graphical methods has been applied in the previous video in exercise 3.1 and 3.2. But today this question related to the substitution method. It is one of the algebraic method. So I am starting from question number 1 solution. Here x plus y equal to 14. Consider equation first. X minus y equal to 4. Consider equation 2. Solving equation first. फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना है. y को x के टर्म में, then y equal to 14 minus x it can be written, and this y value is putting, that means substituting y equal to 14 minus x in equation 2, and we get x minus 14 minus x equal to 4. On solving x minus 14 plus x is equal to 4, 2x is equal to 4 plus 14. So x equal to 18 by 2, 9. And this value of x is putting in equation first. Putting the value of x in equation first, we get 9 plus y, 14. So y equal to 14 minus 9 equal to 5. Hence, we got the solution of the equations x equal to 9, y is equal to 5. In this way, the solution completed by using substitution method. Now, the second one, you see, here s minus t is equal to 3, and consider equation 1, s by 3 plus t by 2 is equal to 6. Consider 2. In solving, every time solving equation 1, so we get s equal to 3 plus t, and this value of s is substituting the value of s in equation 2. S means 3 plus t by 3 plus t by 2 is equal to 6. LCM of 3 and 2, 6. So we multiply by 6. All the term. 6 into 3 plus t by 3. 6t by 2. 6 into 6. 2 3 ja, 3 2 ja. 2 3 ja 6 plus 2t plus 3t, 36. Now 3 to 5t equal to 36 minus 5t. 36 minus 6. And t equals to 30 by 5. You see, 30 by 5. We get the value of one of the variable, and putting this value in equation, putting the value of t in equation first. 6 minus t equal to 3. So t equals to 6 minus 3 equal to 3. Hence, we get s is equal to, okay,
sorry, s minus t, that means s minus 6 is equal to 3. So x equal to 6 plus 3 equal to 9. So s equal to 9 and t equal to 6. Hence our answer completed. Friends, now just I am coming for question number 3 solution. It is given 3x minus y equal to 3. Consider equation first. 9x minus 3y equal to 9. Consider equation second. Solving equation first, we get y equal to 3x minus 3. y उधर गया 3x minus 3. अब ये substituting the value of y in equation second. 9x minus 3, 3x minus 3 equal to 9. 9x minus 9x plus 9 is equal to 9. So 9 equal to 9. That means this shows no specific value. Specific value of x gives the specific value of y. A specific value of y, and all real value of x gives real value of y. That means there are infinite number of solutions the given system of equation have. Okay, so student understood. Now in this way, just I am coming for the solution of question number 4. What is given? 0.2x plus 0.3y equal to 1.3. इसको लिखिए इक्वेशन फर्स्ट. 0.4x प्लस 0.5y 2.3. अब सॉल्व करेंगे. सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट. सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, जैसा कि हर एक सब्स्टिट्यूशन मेथड में इक्वेशन 1 को सॉल्व करते आ रहे हैं. तो ये हमारा 0.3y 1.3 माइनस 0.2x आएगा और y आएगा 1.3 माइनस 0.2x बाय 0.3. कंसीडर दिस इज इक्वेशन थर्ड. अब ये y का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूटिंग the value of y in equation 2 सेकेंड में करेंगे. 0.4x प्लस 0.5 और ये y के लिए 1.3 माइनस 0.2x बाय 0.3 इज इक्वल टू 2.3. यहाँ से 0.3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12x प्लस ये 13 5 जा 65 0.65 और माइनस 2 5 जा 10 0.10x इज इक्वल टू 0.3 से इसको करेंगे 0.69. अब यहाँ हमें आ रहा है 0, इसको और इसको माइनस करेंगे तो आ रहा है 0.02x और यहाँ से चलेंगे तो 0.69 लिख करके और इसको माइनस करेंगे 0.65. हमारे पास आया 0.02x 0.04.
और x का वैल्यू निकल करके आया 0.04 बाय 0.02, सिंप्लीफाइड फॉर्म 2 आया। अब यही वैल्यू हम पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास 0.2 इंटू 2 प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.3y आ गया 1.3 प्लस ये 0.4, 0.3y इक्वल टू 1.3 माइनस 0.4, ये रिज़ल्ट दे रहा है 0.3y इक्वल टू 0.9, y इक्वल टू 0.9 बाय 0.3 इज इक्वल टू 3। हैंस x के लिए वैल्यू 2, y के लिए वैल्यू 3। सो स्टूडेंट्स, अप टू क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक स्पेशल टाइप का जो है, जब ये C1 और C2 0 0 है, दैट मीन्स दे आर कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस a1x प्लस b1y प्लस 0 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस 0 इक्वल्स टू 0, इस तरह का फॉर्म अगर आएगा होमोजीनियस, दैट मीन्स ये तो पहले से क्लियर है कि x और y 0 आएगा, बट यू हैव टू सॉल्व। सो 5 रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0, कंसीडर 1, रूट 3x माइनस रूट 8y 0, इक्वेशन 2। सॉल्विंग फर्स्ट, जैसा कि सभी सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते आ रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट ये आएगा रूट 3y इक्वल टू 0 माइनस रूट 2x, दैट मीन्स y इक्वल टू ये माइनस रूट 2 बाय रूट 3x। अब यही y का वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, आते हैं सेकेंड में। देखिए रूट 3x माइनस रूट 8 और y के लिए माइनस रूट 2 बाय रूट 3x इज इक्वल टू 0। यहाँ से एलसीएम रूट 3 आया, रूट 3 इंटू रूट 3 3x, ये माइनस माइनस प्लस, रूट 8 टू जा रूट 16 यानी 4x इज इक्वल टू 0। 7x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0 आया। अब हमारे पास में एक वैल्यू x का आ गया। मैंने बताया ही था कि इस तरह के जो फॉर्मेट होंगे उनमें x के वैल्यू 0, y के वैल्यू 0। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, रूट 2 इंटू 0 प्लस रूट 3y इक्वल टू 0, ये पूरा 0 आ गया, तो रूट 3y इज इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू 0 बाय रूट 3, y इक्वल टू 0। हैंस x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इज द आंसर। ओके, हमने बताया कि होमोजीनियस। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और ये है हमारे पास में 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 माइनस 2, इक्वेशन फर्स्ट, x बाई 3 प्लस y बाई 2 13 बाई 6। यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यहाँ पे हमारे पास में 3x
बाई 2 माइनस 2 इक्वल टू 5y/3 सॉल्व करके आएगा 3x माइनस 4/2 और ये इंटू ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई करो और 5 से डिवाइड करो इज इक्वल टू y। सो y इज इक्वल टू क्या आएगा 3 3 ज़ा 9x माइनस 3 4 ज़ा 12 बाई 2 5 ज़ा 10। ये आ गया y का वैल्यू। हम यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, तो x बाई 3 प्लस y मीन्स 9x माइनस 12/10 और साथ में 1/2 है इज इक्वल टू 13/6। यहाँ पर 3 और 10 2 ज़ा 20 है, 10 2 ज़ा 20, तो 3 और 20 का LCM आ गया 60। ये आ गया 3 20 ज़ा 20x प्लस 10 2 ज़ा 23 ज़ा 3 9 ज़ा 27x और 10 2 ज़ा 23 ज़ा 3 12 ज़ा 36 इज इक्वल टू 13/6। यहाँ पर हमारे पास 47x माइनस 36 इज इक्वल टू 13 इंटू 60/6, 6 10 जा 47x इज इक्वल टू 130 प्लस 36 यानी 166। ओके 130 प्लस 36। सो x इज इक्वल टू okay first once again just I watching here 3x/2 minus 2, oh no sorry, here minus 2, here minus 2, once again I am repeating, plus 2 and here plus 4, here plus you see plus 12, okay, then this one plus 36 and here minus 36, okay, so here 10 में से 4 6 तो 4 और 12 में 3 9, okay, so x equal to 94/47, okay, so 2. Now putting the value of x, putting the value of x in इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे 3/2 इंटू 2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, ये कैंसिल हो गया, ये जो 3 है उस साइड जाएगा, -5y/3 इज इक्वल टू -2, okay, -3. Now solving here in this space, -5y/3 it is equal to -2 -3 integer rule -5, okay, here minus minus cancel, y equal to 3 into 5 15/5, that means 3. So we have got the result here, x is equal to, okay, x is equal to 2 and y is equal to 3. So we have got the answer of all the questions in part 1. Okay students, now you see question number 2, solve 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to -24 and hence find the value of m. एक इक्वेशन दिया है आपके पास y equal to mx plus 3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये दो इक्वेशन से x y निकालेंगे, तो
first we write 2x plus 3y is equal to 11 is the equation first. 2x minus 4y equal to minus 24 is the equation second. And as we solving equation 1, what we get? We get 3y equals to 11 minus 2x and y equal to 11 minus 2x by 3. And this y value put in footnote substituting. The word substituting is using the value of y in equation second. And you see second 2x minus 4, 11 minus 2x by 3 minus 24. Solve 3 2 जा 6x minus 11 4 जा 44 plus 4 2 जा 8x equal to 3 minus 24 72. We see 8 6 14x is equal to 44 minus 72. Now 14x is equal to 12 में 4 8 6 2 minus x minus 28 by 14 minus 2. Now in this portion we put the value of, just you putting the value of x in equation first and 2x value minus 2 plus 3y 11. So 3y equal to 11, 2 2 जा 4 plus 4, y equal to, here is 11, 11 4 15 by 3 5. Now putting the value of x and y in y equal to mx plus 3. Okay, what is the value of y? 5. M. What is the value of x? Minus 2 plus 3. Now 2m is equal to 3 minus 5, 2m minus 2, m minus 2 by 2 minus 1. Hence x equal to minus 2, y equal to 5 and m equal to minus 1. Okay, so this questions has completed. Students, now अब हम दूसरे स्टेंजा पर पहुंचते हैं जिसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम से लीनियर इक्वेशन को पहले ट्रांसलेट करना है, फिर उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है. फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. क्वेश्चन पढ़िएगा, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स का डिफरेंस माने अंतर. वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, दो में से एक बड़ा है और वो एक बड़ा जो है वो 3 टाइम्स है अदर. फाइंड देम. सो लेट एक्स वाई मानेंगे नंबर को. लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई सच दैट, ये भी लिख दीजिए, सच दैट एक्स को बड़ा मानिए. तो यहाँ पे कहता है कि x माइनस वाई 26 है इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा कहता है कि जो बड़ा है वो 3 टाइम्स छोटा से. दैट मीन्स ये ठीक है, इसी तरह से चलेगा. x माइनस 3y इक्वल टू 0, इस तरह से इक्वेशन फॉर्म कर दिया. अब देखिए कि सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू वाई प्लस 26 और वो वैल्यू x इक्वल टू वाई प्लस 26 सब्सटीट्यूट करेंगे. सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू वाई प्लस 26 इन इक्वेशन 2. तो y प्लस 26 माइनस 3y 0, तो y माइनस 3y माइनस 2y और ये माइनस 26. y इक्वल टू माइनस 26 माइनस 2 13. y के लिए 13 आ गया. अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ
ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x माइनस 13 26, x इक्वल टू 26 प्लस 13, x इक्वल टू 39, हैंस x इक्वल टू 39, सॉरी नंबर पूछ रहा है, हैंस टू नंबर्स, इसको हमने एक्स वाई माना था, टू नंबर्स आर, एक है जो ग्रेटर 39 और दूसरा क्या है 13, क्योंकि 26 का अंतर आ रहा है जो हमें निकालना था। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 3 कंप्लीटेड। स्टूडेंट्स, ये वर्ड प्रॉब्लम्स के जो देख रहे हैं आप, इन्हें एग्जामिनेशन में आपको जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म में आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा। तो आप देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। आपको इसमें सप्लीमेंट्री एंगल्स का चर्चा आ गया ज्योमेट्री का, कि आपने पिछले क्लास में 7th में भी पढ़ा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं कि द सम ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री, और जो लार्जर है वो एक्सीड्स, ज़्यादा है स्मॉलर से 18 डिग्री। आप उन दोनों को निकालिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स को एक्स वाई मान लीजिए। लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स एंड वाई। क्या होगा आपको, देन जो सप्लीमेंट्री एंगल है उसका सम 180 डिग्री होता है। ओके, और यहाँ पे आप लिखिए सच दैट, इसको आप ग्रेटर मान रहे हैं तो x ग्रेटर देन y। फिर कहता है कि जो लार्जर है, दैट मीन्स लार्जर x वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज़्यादा है, दैट मीन्स x माइनस वाई 18 डिग्री। हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट को, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आएगा, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई, और इसे सब्सटीट्यूट करेंगे क्योंकि सब्सटीट्यूशन मेथड से बनाना है। सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई माइनस इन इक्वेशन सेकेंड। तो जो सेकेंड कह रहा है कि x माइनस वाई यानी 180 डिग्री माइनस वाई, एक बार और माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये 18 है, 18 डिग्री इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो अब देखिए माइनस 2y, 18 डिग्री माइनस 180 डिग्री, माइनस 2y हो जाएगा, 10 में 8 गया 2, और ये 7 में 1 गया 6, 162 डिग्री माइनस में। तो y हो गया कितना, 162 डिग्री बाई 2, 2 8 जा 1 जा 81 डिग्री। अब वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation first, सॉरी y। तो फर्स्ट देखिए y, x प्लस 81 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, सो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री। तो x इक्वल टू 10 में 1 गया 9, और 17 में 8 गया 9, 99। हैंस टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स आर कितना कितने मेजर का हो गया, 99 डिग्री 81 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, सेकेंड नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 completed. Now question number 3. The coach of cricket team buys 7 bats, 6 balls, 3,800. So let cost of 1 bat and 1 ball be ₹X and ₹Y. और वो कोच खरीदता है 7 बैट्स। फर्स्ट केस में कितना बैट खरीदता है, 7 बैट का कीमत 7x 6y इज इक्वल टू कितना लगता है 3,800। और सेकंड केस में खरीदता है 3 बैट 5 बॉल, 3x प्लस
5y 1750। फर्स्ट को सॉल्व करना है, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट 6y हो गया 3800 माइनस 7x, y इक्वल टू 3800 माइनस 7x बाय 6। ये y का वैल्यू सेकेंड में डालना है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 2, 3x plus 5 3800 minus 7x by 6 is equal to 1750। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, सभी को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 18x हो गया प्लस ये 5 0 0 0 19,000 माइनस 35x, ये 6 कट गया और ये आ जाएगा 6 से 0 10,500। अब 18 में से 35 गया माइनस 17x इज इक्वल टू 10,500 माइनस 19,000 माइनस 17x माइनस 8,500 x इक्वल टू 8,500 बाई 17,500। ये वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation, okay, first 7 into 500 6y 3,800 minus 3,500 y equal to 300 by 6 50। hence cost of 1 bat हो गया ₹500, cost of 1 ball ₹50। okay, so hence the question number 3rd of 3 completed। now students, just I am looking question number 4। कहता है कि टैक्सी चार्जेज सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर a distance of 10 kilometer the charge paid 105। for a journey of 15 kilometer the charge paid is 155। what are fixed charges, charge per kilometer, how much does a person have to pay for traveling distance of 25 kilometers? So first of all, what are the fixed charge? Let fixed charge be x and charge per kilometer, charge per kilometer be y, and the first condition fixed charge x and 10 kilometer, okay, 10y 105 rupees, equation first, and again x plus 15 kilometer, this is 155। you have to use substitution method, so solving equation first, okay, x equal to 105 minus 10y, and this value of x substituting the value of x in equation second, that means 105 minus 10y plus 15y, this is 155। so now 15y minus 10y 5y and 155 constant in the same side, variable same side, so now y equals to 50 by 5, this is 10, this 10 is putting the value of y in equation first। what is the equation first? X
plus 10 into 10, 105. So x equals to 105 minus 100, x equal to 5. Okay. So what are the fixed charge? Fixed charge rupees 5, and the charge per kilometer is equal to rupees 10. That is why. And how much person have to pay? Any person have to pay for traveling. Person has to pay for traveling 25 km, x plus 25y, that means 5 plus 25 into 10, 255 rupees. So question number 4 of third completed. Now students, question number 5, you see fraction जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बना है, ये 9/11 हो जाता है इफ़ 2 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अगेन कहता है कि अगर 3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में प्लस करोगे तो 9/11 के बदले 5/6 हो जाता है. फाइंड द फ्रैक्शन. सो लेट मी स्टार्ट. लेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर denominator of fraction b x and y. then required fraction क्या हो जाएगा? required fraction x by y. अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर कहता है 2 दोनों में प्लस करते हैं तो आता है 9/11. 11x plus 22, 9y plus 18. 11x minus 9y, 18 minus 22, ये हो जाएगा 11x minus 9y हो जाएगा -4. अगेन है, अगर कहता है कि 3 प्लस करता है तो ये आ जाता है 5/6. ये 6x plus 18, 5y plus 15, 6x minus 5y, 15 minus 18, 6x minus 5y हो गया -3. अब क्या करूँगा? सॉल्व करूँगा. सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट. हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ रहा है 11x -4 प्लस 9y. तो x आ रहा है -4 प्लस 9y/11. ये वैल्यू 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे. सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू -4 प्लस 9y/11. तो 6x -4 प्लस 9y/11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3. माइनस 6 4 जा -24 प्लस 54y माइनस 55y इक्वल टू -33. ये 54 में से 55 गया, माइनस y इक्वल टू -33 प्लस 24, माइनस y आया -9, y इक्वल टू 9. वैल्यू पुट किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. हम देखें इक्वेशन 1 का है 11x -9
into 9 minus 4. So 11x equal to 9 9s are 81 minus 4. 11x 77. X 77 by 11 7. Hence रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, जो x बाय वाई है, x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 9. Hence completed the question number 5. Friends, just I am starting question number 6. 5 years hence, age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's was 7 times his son. What their present age is? So first we let present ages of Jacob's and his son be x years and y years. Now, according to question, the 5 years hence x plus 5 is equal to Jacob will be 3 times y plus 5. So now x plus 5 equal to 3y plus 15. X minus 3y, 15 minus 5. X minus 3y equal to 10. This is equation first. Again, according to question, okay, 5 years ago, x minus 5 is equal to 7 times y minus 5. So x minus 5 equals to 7y minus 35. X minus 7y equals to 5 minus 35. So here x minus 7y minus 30. Now solving equation first. So we have first x equal to 10 plus 3y and substituting the value of x in equation first. Okay, so second, and in second you see x means okay, x means 10 plus 3y minus 7y minus 30 minus 4y minus 30 minus 10, y equal to minus 40 by minus 4, y equal to 10. Now putting the value of y in equation first, and we see x minus 3 into 10 equal to 10. Okay, x equal to 10 plus 30, x equal to 40. Hence Jacob's present age 40 years and his son's present age 10 years. Students, now completed all the questions of exercise 3.3.